اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضوان نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات مودودی۔ حج کے ٹاپک پچھلی نشست میں ہم نے حج کی معنی اور حج کے بارے میں بیسکس جانتے ہوئے اب ہم آئے ہیں آج حج کی تاریخ کو پڑھنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری جانی تھی ہم نے، کچھ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے حج کے بارے میں جانا تھا، اور اب آج کا خطبہ ہمیں بتائے گا حج کی تاریخ۔ چلتے ہیں حج کی تاریخ کی طرف۔ برادران اسلام، پچھلے خطبے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حج کی ابتدا کس طرح اور کس غرض کے لیے ہوئی تھی۔ یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو اس اسلامی تحریک کا مرکز بنایا تھا اور یہاں اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو بٹھایا تھا تاکہ آپ کے بعد وہ اس تحریک کو جاری رکھیں۔ اولاد ابراہیم میں بت پرستی کا رواج، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کب تک اس دین پہ قائم رہی جس پر ان کے باپ ان کو چھوڑ گئے تھے۔ بہرحال چند صدیوں میں یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیم اور ان کے طریقے سب بھول بھال گئے، اور رفتہ رفتہ ان میں وہ سب گمراہیاں پیدا ہو گئیں جو دوسری جاہل قوموں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی کعبے میں جسے ایک خدا کی پرستش کے لیے دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا گیا تھا، سینکڑوں بت رکھ دیے گئے تھے، اور غضب یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بت بنا ڈالا گیا، جن کی ساری زندگی بتوں ہی پرستش مٹانے میں صرف ہوئی تھی۔ ابراہیم حنیف کی اولاد نے لات، منات، حبل، نشر، یغوث، عزا، اساف، نائلہ اور خدا جانے کس کس نام کے بت بنائے اور ان کو پوجا۔ چاند، عطارد، زہرہ، زحل اور معلوم نہیں کس کس ستارے کو پوجا۔ جن بھوت پریت، فرشتوں اور اپنے مردہ بزرگوں کی روحوں کو پوجا۔ جہالت کا زور یہاں تک بڑھا کہ جب گھر سے نکلتے اور اپنا خاندانی بت انہیں پوجنے کو نہ ملتا تو راستہ چلتے میں جو اچھا سا چکنا پتھر مل جاتا اسی کو پوج ڈالتے، اور پتھر بھی نہ ملتا تو مٹی کو پانی سے گوندھ کر ایک پنڈا سا بنا لیتے، اور بکری کا دودھ چھڑکتے ہی وہ بے جان پنڈا ان کا خدا بن جاتا۔ جس مہنت گری اور پنڈتائی کے خلاف ان کے باپ ابراہیم نے عراق میں لڑائی کی تھی، وہ خود انہی کے گھر میں گھس آئی۔ کعبے کو انہوں نے ہریدوار یا بنارس بنا لیا، خود وہاں کے مہنت بن کر بیٹھ گئے۔ حج کو تیرتھ یاترا بنا کر اسی گھر سے جو توحید کی تبلیغ کے لیے بنا تھا بت پرستی کی تبلیغ کرنے لگے، اور پجاریوں کے ساتھ سارے ہتھ کنڈے اختیار کر کے انہوں نے عرب کی دور و نزدیک سے آنے والے جاتریوں سے نظر چڑھاوے وصول کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح وہ سارا کام برباد ہو گیا جو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کر گئے تھے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا طریقہ جاری کیا تھا اس کی جگہ کچھ اور ہی کام ہونے لگے۔ حج میں بگاڑ کی شکلیں۔ شعراء کے مقابلے اس جاہلیت کے زمانے میں حج کی جگت بنی، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ایک میلہ تھا جو سال کے سال لگتا تھا۔ بڑے بڑے قبیلے اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ یہاں آتے اور اپنے اپنے پڑاؤ لگ ڈالتے۔ ہر قبیلے کا شاعر یا بھاٹ اپنے اور اپنے قبیلوں والوں کی بہادری، ناموری، عزت، طاقت اور سخاوت کی تعریف میں زمین و آسمان میں کلابے ملاتا، اور ہر ایک ڈینگے مارنے میں دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ دوسرے کی ہجوم تک نوبت پہنچ جاتی۔ جھوٹی سخاوت کے مظاہرے۔ پھر فیاضی کا مقابلہ ہوتا، ہر قبیلے کے سردار اپنی بڑائی جتانے کے لیے دیگیں چڑھاتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اونٹ پر اونٹ کاٹتے چلے جاتے۔ اس فضول خرچی سے ان لوگوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس میلے کے موقع پر ان کا نام سارے عرب میں اونچا ہو جائے اور یہ چرچے ہوں کہ فلاں صاحب نے اتنے اونٹ ذبح کیے اور فلاں صاحب نے اتنوں کو کھلایا۔ ان مجلسوں میں راگ رنگ، شراب خوری، زنا اور ہر قسم کی فحش کاری خوب دھڑلے سے ہوتی تھی، اور خدا کا خیال مشکل ہی سے کسی کو آتا تھا۔ برہنہ طواف۔ کعبے کے گرد طواف ہوتا تھا، مگر کس طرح؟ عورت، مرد،
सब नंगे होकर घूमते थे और कहते थे कि हम इस हालत में खुदा के सामने जाएंगे जिसमें हमारी माँओं ने हमें जना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद में इबादत होती थी, मगर कैसी तालियां पीटी जाती, सीटियां बजाई जाती और नरसंगे फूके जाते, खुदा का नाम पुकारा जाता, मगर किस शान से। कहते थे, यानी मैं हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मगर वो जो तेरा होने की वजह से तेरा शरीक है तो इसका भी मालिक है और इसकी मलकियत का भी मालिक है। कुर्बानी का तस्वुर, खुदा के नाम पर कुर्बानियां करते थे, मगर किस बदतमीजी के साथ। कुर्बानी का खून काबे की दीवारों से लुथेड़ा जाता और गोश्त दरवाजे पे डाला जाता। नाउजुबिल्लाह, इस ख्याल से कि नाउजुबिल्लाह ये खून और गोश्त खुदा को मतलूब है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल गाफिलीन, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल खासिरीन। हराम महीनों की बेहरमती। हज़रत इब्राहीम ने हज के 4 महीनों को हराम ठहराया था और हिदायत की थी कि इन महीनों में किसी किस्म का जंग व जदल ना हो। ये लोग इस हुर्मत का किसी हद तक ख्याल रखते थे, मगर जब लड़ने को जी चाहता तो ढिठाई के साथ एक साल हराम महीने को हलाल कर लेते और दूसरे साल इसका बदला कर देते थे। चंद खुद साख्ता पाबंदियां, फिर जो लोग अपने मजहब में नेक नीयत थे उन्होंने भी जहालत की वजह से अजीब अजीब तरीके ईजाद कर लिए थे। कुछ लोग बगैर ज़ादे राह लिए हज को निकल खड़े होते और मांगते खाते चले जाते थे। इनके नज़दीक ये नेकी का काम था। कहते थे, हम मुतवक्किल हैं, खुदा के घर की तरफ जा रहे हैं, फिर दुनिया का सामान क्यों लें। उमूमन हज के सफ़र में तिजारत करने या कमाई के लिए मेहनत मशक्क़त करने को नाजायज़ समझा जाता था। बहुत से लोग हज में खाना पीना छोड़ देते थे और इसे भी दाखिले इबादत समझते थे। बाज़ लोग हज को निकलते तो बातचीत करना तर्क कर देते और इसका नाम हज अस्मत यानी गूंगा हज था। इस किस्म की और गलत रस्में बेशुमार थीं जिनका हाल बयान करके मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। दुआए खलील की कबूलियत, ये हालत कमोबेश 2000 बरस तक जारी रही। इस तवील मुद्दत में कोई नबी अरब में पैदा नहीं हुआ, ना किसी नबी की खालिस तालीम अरब के लोगों तक पहुंची। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि उस दुआ का पूरा होने का वक्त आया जो उन्होंने काबे की दीवारें उठाते वक्त अल्लाह से मांगी थी, यानी परवरदिगार, इनके दरमियान एक पैगंबर खुद उन्हीं की कौम में से भेजो जो इन्हें तेरी आयात सुनाए और किताब और दानाई की तालीम दे और इनके इखलाक दुरुस्त करे। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से फिर एक इंसान कामिल उठा जिसका नाम पाक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पंडितों और महंतों के ख़ानदान में आँख खोली थी, इसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस ख़ानदान में आँख खोली जो सदियों से काबे की तीरथ का महंत बना हुआ था। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से खुद अपने खानदान मेहनती पर दर्ब लगाई, इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर दर्ब लगाई और महज दर्ब नहीं लगाई बल्कि हमेशा के लिए इसकी जड़ काट कर रख दी। फिर जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बातिल अक़ीदों और झूठे खुदाओं की खुदाई मिटाने के लिए जद्दोजहद की थी और एक खुदा की बंदगी फैलाने की कोशिश की थी, बिल्कुल वही काम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया और फिर इसी असली और बेलौज दीन को ताज़ा कर दिया जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। 21 साल की मुद्दत में जब ये सारा काम आप मुकम्मल कर चुके तो अल्लाह के हुक्म से आपने फिर इसी तरह काबे को तमाम दुनिया की खुदा परस्तों का मरकज़ बनाने का ऐलान किया और फिर वही मनादी की, सब तरफ से हज के लिए इस मरकज़ की तरफ आओ। जिल्द 21 ही लिखा हुआ है। सूरह आल इमरान की आयत बताती है, और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो कोई इस घर तक आने कुदरत रखता हो वो हज के लिए आए, फिर जो कोई कुफर करे यानी कुदरत के बावजूद ना आए तो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। सुन्नत इब्राहीमी का अहया। इस तरह हज का असरनो आगाज करने के साथ ही जाहिलियत की वो सारी रस्में भी एक कलम मिटा दी गईं जो पिछले 2000 बरस में रिवाज पा गई थी। बुत परस्ती का खात्मा, काबे के सारे बुत तोड़े गए, खुदा के सिवा दूसरों की परस्तिश वहां हो रही थी तो वो कतन रोक दी गई, सब रस्में मिटा दी गईं, मेले ठेले और तमाशे बंद कर दिए गए और हुक्म दिया गया कि अब जो तरीका इबादत का बताया जा रहा है इस तरीके से यहाँ अल्लाह की इबादत करो। सूरह बकरा बताती है कि यानी अल्लाह को याद करो उस तरह जैसी तुम्हें अल्लाह ने हिदायत की है, वरना इससे पहले तो तुम गुमराह लोग थे। बेहुदा अफ़आल की ममानियत, तमाम बेहुदा अफ़आल की सख्त ममानियत कर दी गई, यानी हज में न शहवानी अफ़आल किए जाएं, नफस को फजूर हो, न लड़ाई झगड़े हों। शायरी के दंगल, बाप दादा के कारनामों पर फख्र, भट्टी और हिजू गोई के मुकाबले सब बंद कर दिए गए। सूरह बकरा की आयत नंबर 200 बताती है कि यानी फिर जब अपने मनासिक हज अदा कर चुको तो जिस तरह तुम अपने बाप दादा का जिक्र किया करते थे अब अल्लाह को याद करो, बल्कि इससे भी बढ़ के। नुमाइशी फयाजी का
खात्मा। फयाज़ी के मुकाबले जो महज़ दिखावे और नामवरी के लिए होते थे, इन सब का खात्मा कर दिया गया और इसकी जगह वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का तरीक़ा फिर ज़िंदा किया गया कि महज़ अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह किए जाएँ ताकि खुशहाल लोगों की कुर्बानी से गरीब हाजियों को भी खाने का मौका मिल जाए। सूरह आराफ बताती है कि खाओ पियो मगर इसराफ ना करो कि अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह हज बताती है कि इन जानवरों को खालिस अल्लाह के लिए इसी के नाम पर कुर्बान करो, फिर जब इनकी पीठें ज़मीन पर ठहर जाएं यानी जब जान पूरी तरह निकल चुके और हरकत बाकी ना रहे तो खुद भी इनमें से खाओ और काने को भी खिलाओ और हाजतमंद साइल को भी। कुर्बानी का खून और गोश्त लथेड़ना मौकूफ, कुर्बानी का खून काबे की दीवारों से लथेड़ना और गोश्त लाकर डालना मौकूफ किया गया और इरशाद हुआ कि अल्लाह को इन जानवरों के गोश्त और खून नहीं पहुंचते बल्कि तुम्हारी परहेजगारी और खुदा तरसी पहुंचती है। बरहना तवाफ की ममानियत बरहना होकर तवाफ करने की कतई ममानियत कर दी गई और फरमाया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो कि किसने अल्लाह की इस जीनत को हराम किया जो इसने अपने बंदों के लिए निकाली थी यानी कि लिबास। ए नबी कहो कि अल्लाह तो हरगिज़ बेहयाई का हुक्म नहीं देता। ये भी सूरह आराफ ही की आयत है और सूरह आराफ की एक और आयत बताती है कि एक ए आदमजाद हर इबादत के वक्त अपनी जीनत यानी लिबास पहने रहा करो। हज के महीनों में उलट फेर की ममानियत, हज के महीनों का उलट फेर करने और हराम महीनों को लड़ाई के लिए हलाल कर लेने से सख्ती के साथ रोक दिया गया। सूरह तौबा में मिलता है कि नसीतु कुफ्र में और ज्यादती है यानी कुफ्र की ढिठाई का इजाफा है। काफिर लोग इस तरीके से और ज्यादा गुमराही में पड़ते हैं। एक साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और दूसरे साल इसके बदले में कोई दूसरा महीना हराम कर देते हैं ताकि जितने महीने अल्लाह ने हराम ठहराए हैं उनकी तादाद पूरी कर दी जाए, मगर इस बहाने से दरअसल इस चीज को हलाल कर लिया जाए जिसे अल्लाह ने हराम किया था। ज़ादे राह लेने का हुक्म, तो ज़ादे राह लिए बगैर हज के लिए निकलने को ममनू ठहराया गया और इरशाद हुआ। सूरह बकरा में पता लगता है कि ज़ादे राह ज़रूर लो क्योंकि दुनिया में ज़ादे राह ना लेना ज़ादे आखरत नहीं है, बस बेहतरीन ज़ादे आखरत तो तकवा है। हज में रोजी कमाने की इजाजत तो सफर हज में कमाई ना करने को जो नेकी का काम समझा जाता था और रोजी कमाने को नाजायज ख्याल किया जाता था इसकी तरदीद की गई। सूरह बकरा ही से पता चलता है कि कोई मुजायका नहीं अगर तुम कारोबार के जरिए से अपने रब का फजल तलाश करते जाओ। जाहिली रस्मों का खात्मा, गूंगे हज और भूखे प्यासे हज से भी रोका गया और इसी तरह जाहिलियत की दूसरी तमाम रस्मों को मिटाकर हज को तकवा, खुदा तरसी, पाकीजगी और सादगी और दरवेशी का मुकम्मल नमूना बना दिया गया। हाजियों को हुक्म दिया गया कि जब अपने घरों से चलो तो अपने आप को तमाम दीनवी आलाइशों से पाक कर लो, शहवात को छोड़ो, बीवियों के साथ भी इस जमाने में ताल्लुक को ज़नो शो ना रखो, गाली गलोज और तमाम बेहुदा अमाल से परहेज करो। मीकात का तयन तो काबे की तरफ आने वाले जितने रास्ते हैं इन सब पर बीसों मील दूर से एक एक हद मुकर्रर कर दी गई कि इस हद से आगे बढ़ने से पहले सब लोग अपने अपने लिबास बदलकर एहराम का फ़कीराना लिबास पहन लें ताकि सब अमीर व गरीब यकसा हो जाएं, अलग अलग कौमों के इम्तियाज़ात मिट जाएं, वो सब के सब अल्लाह के दरबार में एक होकर फ़कीर बनकर आजिज़ाना शान के साथ हाजिर हों। अल्लाह ताला हमें भी उस दर की हाजिरी नसीब करे, इस एहराम को पहनकर हमें भी वहाँ का तवाफ नसीब करे। आमीन। पुरअमन माहौल की हिदायत, एहराम बांधने के बाद इंसान का खून बहाना तो दरकिनार जानवर तक का शिकार करना हराम कर दिया गया ताकि अमन पसंदी पैदा हो, बहीमियत बहीमियत दूर हो जाए और तबीयतों पर रूहानियत का गलबा हो। हज के 4 महीने इसलिए हराम किए गए कि इस मुद्दत में कोई लड़ाई ना हो, काबे को जाने वाले तमाम रास्तों में अमन रहे और ज़ायरीन हरम को कोई ना छेड़े। इस शान के साथ जब हाजी हरम में पहुंचे तो इनके लिए कोई मेला ठेला खेल तमाशा नाच रंग वगैरह नहीं है। कदम कदम पर खुदा का जिक्र है, नमाजें हैं, इबादतें हैं, कुर्बानियां हैं, काबे का तवाफ है और कोई पुकार है तो बस ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक ही नारा है तलबिया, हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ यकीनन तारीफ सब तेरे ही लिए है, नेमत सब तेरी है, सारी बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका असलकुल ज़ियारतुल हरमैन व शरफैन।
ऐसे ही पाको साफ बेलौस और मुखलिसाना हज के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया और इसमें शहवत और फिस्क और फुजूर से परहेज किया, वो इस तरह पलटा जैसे आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ज़ियारतल हरमैन शरीफैन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ज़ियारतल हरमैन शरीफैन। जिसने अल्लाह के लिए हज किया और इसमें शहवत और फ़स्क़ व फ़ुजूर से परहेज़ किया, वो इस तरह पलटा जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। फ़रीज़ा हज की अहमियत अब क़बल इसके कि आपके सामने हज के फ़ायदे के बारे में कुछ बयान किए जाएँ, ये बताना ज़रूरी है। बता देना ज़रूरी है कि ये फ़र्ज़ कैसा है। कुरान में अल्लाह ताला फ़रमाता है कि और लोगों पर अल्लाह का हक़ है जो इस घर तक पहुँचने की कुदरत रखता हो, वो इसका हज करे। जिसने कुफ़्र किया तो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज़ है। सूरह आले इमरान की आयत है। इस आयत में कुदरत रखने के बावजूद क़स्दन हज ना करने को कुफ़्र के लफ्ज़ ताबीर किया गया और इसकी शरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसों से होती है कि यानी जो शख्स ज़्यादा राह और सवारी रखता हो जिससे बैतुल्लाह तक पहुँच सकता हो और फिर हज ना करे, तो इसका इस हालत पर मरना और यहूदी या नसरानी होकर मरना यकसा है। इसी तरह एक और हदीस है जो बताती है कि जिसको ना किसी सरी हाजत ने हज से रोका हो, ना किसी जालिम सुल्तान ने, ना रोकने वाले मर्ज़ ने, फिर इसने हज ना किया हो और इसी हालत में से मौत आ जाए, तो इसे इख्तियार है ख्वाह यहूदी बनकर मरे या नसरानी बनकर। और इसकी तफसीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कहा कि जो लोग कुदरत रखने के बावजूद हज नहीं करते, मेरा जी चाहता है कि इन पे जिज़िया लगा दूं, वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। अल्लाह ताला के इस फरमान और रसूल और खलीफाए रसूल की इस तशरीह से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़र्ज़ ऐसा फ़र्ज़ नहीं है कि जी चाहे तो अदा कीजिए और ना जी चाहे तो टाल दीजिए, बल्कि ये ऐसा फ़र्ज़ है कि हर उस मुसलमान को जो काबे तक जाने और आने का खर्च रखता हो और हाथ पाँव से माज़ूर ना हो, उम्र में एक मरतबा इसे लाज़मन अदा करना चाहिए, ख्वाह वो दुनिया के किसी कोने में हो और ख्वाह उसके ऊपर बाल बच्चों की और अपने कारोबार या मुलाज़मत वगैरह की कैसी ही ज़िम्मेदारियाँ हों। जो लोग कुदरत रखने के बावजूद हज को टालते रहते हैं और हज़ारों मसरूफ़ियतों के बहाने कर के साल पर साल यूँ ही गुज़ारते चले जाते हैं, इनको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। रहे वो लोग जिनको उम्र भर कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि हज भी कोई फ़र्ज़ इनकी ज़िम्मे है, दुनिया भर के सफ़र करते फिरते हैं, काबा यूरोप को आते जाते हिजाज़ के साहिल से भी गुज़र जाते हैं, जहाँ से मक्का सिर्फ चंद घंटों की मसाफ़त पर है और फिर भी हज का इरादा तक इनके दिल में नहीं गुज़रता। वो कतई मुसलमान नहीं जो झूठ कहते हैं। अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कुरान से जाहिल हैं जो इन्हें मुसलमान समझता है, इनके दिल में अगर मुसलमानों का दर्द उठता है तो उठा करे। अल्लाह की अताअत और इसके हुक्म पर ईमान का जज्बा तो बहरहाल इनके दिल में नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए, ऐसा हज जो उसकी बारगाह में कबूल व मंजूर किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाह नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अब तक के टॉपिक में कौन सी बात आपके दिल को लगी, किसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, क्या कैफियत रही जब हमारे सामने तस्करा था मक्का मुकर्रमा का, हज की मुबारक सफ़र का? शेयर करें। एक तो ये कि हज की लिए बंदा सोचता नहीं है, बात सही है। आज का मुसलमान भी सोचता नहीं है कि अभी तो मेरे ये भी फराइज हैं, वो भी फराइज हैं, वो भी फराइज हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं आपका मेंशन हो कि भाई बच्चों की शादी करनी है तो ये है वो है। अगर आपके पास है तो आपको जाना चाहिए, सारी चीजें होने के बावजूद, है नहीं। और दूसरी ये कि पहले मैंने अब पहली बार सुना कि पहले ये मतलब बरहना होके ही हज करते थे, ऐसा तो ये पे बहुत ऑकवर्ड सी सुना बात है। होगा आपने, उसने बताया नहीं था क्या कहते हैं, अर्शी ने जब हज का आया था तब बताया था इसने कि पहले ये लोग ये करते थे, लेडीज भी, पहले हाँ, से। मतलब जेंट्स तो था कि, लेकिन लेडीज भी। हम्म, तो उस टाइम मैंने सुना था। हम्म। जेंट्स का तो है कि हाँ वो अभी भी उनका ही है कि उनके दो ही कपड़े होते हैं, लेकिन वो कवर करके अभी भी लोग जो है ना शोल्डर कवर होने चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि शोल्डर उनके ओपन होते हैं।
दिख रहे होते हैं। और आपने दुआ भी शेयर कर दी हज वाली, यही वाली थी ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्अलुकल ज़ियारतुल ज़ियारतुल हरमैन, आगे तो बोलिए। मैं शेयर कर आज हम दूंगी। मैं भाई उनका था शायद, ये दुआ उन्होंने बड़ी सही बताई थी, हज की दुआ शायद इसी में बताई, लिसानी कुरान में, या मैंने रखी है, मैं भी करूंगी, छोटी सी है कि मैं अल्लाह हमें जो इंशाल्लाह है। ये वाली भेज दूंगी आपको, ये मुझे मिली थी तो मैं आपको भेज दूंगी। लेकिन वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा दिल करता है जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा आती है ना, तो ऐसा लगता है कि इंसान बस उड़ के वहां पहुंच जाए। और ये जब हज हो रहा होता है ना, उस दौरान ये बहुत से वीडियोस होते हैं, और ये सदा हमेशा ही अच्छी लगती है। मतलब मेरा अपना अकेला क्या है, सभी के लिए ये इतनी हम्म अहम है। मैं तो यही लगभग रोज पढ़ती हूँ, रोज पढ़ लेती हूँ कि अल्लाह पाक बुला लो। शुरू करें। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हज के फ़ायदे पढ़ के आज की इस नशिस्त को बर्खास्त करेंगे। चलते हैं हज के फ़ायदे की तरफ, देखते हैं मौदूदी साहब ने हज के फ़ायदे के इस मज़मून के अंदर हमें क्या बताया है। हज के फ़ायदे, बरदराने इस्लाम, कुरान मजीद में जहाँ ये ज़िक्र आया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज की आम मनादी करने का हुक्म दिया था, वहाँ इस हुक्म की पहली वजह ये बयान की गई है कि सूरह हज बताती है कि ताकि लोग यहाँ आकर देखें कि इस हज में इनके लिए कैसे फ़ायदे हैं। यानी ये सफ़र करके, अच्छा इससे पहले कि हम इस सफ़र को शुरू करें हज के फ़ायदों का, ये सुनते हुए अपने ज़हन में ये रखिएगा कि जो फ़ायदे हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्या आज का हज हमें वो फ़ायदे देता है? यहाँ वहाँ पे भी हम लैग कर रहे हैं, हम खसारे में हैं। सोचिएगा, फिर हम इख्तिताम पे इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि ये सफ़र करके और इस जगह जमा होकर वो खुद अपनी आँखों से मुशाहिदा कर लें कि ये इन्हीं के नफ़े के लिए है, और इसमें जो फ़ायदे पोशीदा हैं इनका अंदाज़ा कुछ इसी वक़्त हो सकता है जबकि आदमी ये काम करके खुद देख ले। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के मुताल्लिक़ रिवायत है कि जब तक उन्होंने हज ना किया था, उन्हें इस मामले में तरद्दुद था कि इस्लामी इबादत में सबसे अफ़ज़ल कौन-सी इबादत है, मगर जब उन्होंने खुद हज करके इन बेहद हिसाब फ़ायदों को देखा जो इस इबादत में पोशीदा हैं, तो बेताम्मुल पुकार उठे कि यकीनन हज सबसे अफ़ज़ल है। आइए अब मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में इसके फ़ायदे बता दूँ। सफ़र हज की नौइयत, दुनिया के लोग अमूमन 2 ही किस्मों के सफ़र से वाकिफ़ हैं। एक सफ़र वो जो रोटी कमाने के लिए किया जाता है, दूसरा वो जो सैर-ओ-तफ़रीह के लिए किया जाता है। इन दोनों किस्म के सफ़रों में अपनी गर्ज़, अपनी ख्वाहिश आदमी को बाहर निकलने पे आमादा करती है। घर छोड़ता है तो अपनी गर्ज के लिए, बाल बच्चों और अजीजों से जुदा होता है तो अपनी खातिर, माल खर्च करता है या वक्त सर्फ करता है तो अपने मतलब के लिए। लिहाजा इसमें कुर्बानी का कोई सवाल नहीं है। मगर ये सफ़र जिसका नाम हज है, इस मामले और सब सफ़रों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सफ़र अपनी किसी गर्ज के लिए या अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए है, और इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इस सफ़र पर कोई शख्स इस वक्त तक आमादा हो ही नहीं सकता जब तक कि इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो, इसका खौफ ना हो और इसके फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझने का ख़याल ना हो। बस जो शख्स अपने घर बार से एक लंबी मुद्दत की अलहदगी, अपने अजीज़ों से जुदाई, अपने कारोबार का नुकसान, अपने माल का खर्च, सफ़र की तकलीफ़ें गवारा करके हज को निकलता है, इसका निकलना खुद इस बात की दलील है कि इसके अंदर खौफ़े खुदा और मोहब्बत खुदा भी है, और फ़र्ज़ का एहसास भी, और इसमें ये ताकत भी मौजूद है कि अगर किसी वक्त खुदा की राह में निकलने की ज़रूरत पेश आए तो वो निकल सकता है, तकलीफ़ें उठा सकता है, अपने माल और अपनी राहत को खुदा की खुशनुदी पे कुर्बान कर सकता है। नेकी और तकवा की रग़बत, फिर जब वो ऐसे पाक इरादे से सफ़र के लिए तैयार होता है तो इसकी तबीयत का हाल कुछ और ही होता है। जिस दिल में खुदा की मोहब्बत का शौक़ भड़क उठा हो, जिसको इधर की लौ लग गई हो, इसमें फिर नेक ही नेक ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। गुनाहों से तौबा करता है, लोगों से अपना कहा सुना बख्शवाता है, किसी का हक इस पर आता हो तो इसे अदा करने की फ़िक्र करता है ताकि खुदा के दरबार में बंदों के हुकूक का बोझ लादे हुए ना जाए। बुराई से इसके दिल को नफ़रत होने लगती है, कुदरती तौर पर भलाई की तरफ रग़बत बढ़ जाती है। फिर सफ़र के लिए निकलने के साथ ही जितना जितना खुदा के घर की तरफ बढ़ता चला जाता है, उतना ही उसके अंदर नेकी का जज्बा बढ़ता चला जाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि किसी को इससे अज़ियत ना पहुँचे, जिसकी जितनी खिदमत या मदद हो सके करे। बदकलामी और बेहूदगी, बेहयाई, बददियानती और झगड़ा फसाद करने से खुद इसकी अपनी तबीयत अंदर से रुकती है।
کیونکہ وہ خدا کے راستے میں جا رہا ہے، حرم الہی کا مسافر ہو اور پھر برے کام کرتا ہوا جائے، ایسی شرم کی بات کسی سے کیسے ہو؟ اس کا تو یہ سفر پورا کا پورا عبادت ہے، اس عبادت کی حالت میں ظلم اور فسق کا کیا کام؟ پس دوسرے تمام سفروں کے برعکس ایسا سفر ہے جو ہر دم آدمی کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، اور یوں سمجھو کہ یہ ایک بہت بڑا اصلاحی کورس ہے جس سے لازماً ہر اس مسلمان کو گزرنا ہوتا ہے جو حج کے لیے جائے۔ احرام اور اس کے شرائط: سفر کا ایک حصہ ختم کر چکنے کے بعد ایک خاص حد ایسی آتی ہے جس سے کوئی مسلمان جو کہ مکہ جانا چاہتا ہو احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احرام کیا ہے؟ ایک فقیرانہ لباس جس میں ایک تہبند، ایک چادر اور جوتی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک آواز نہیں آ رہی ہے۔ انم لیفٹ ہو گئے، پڑے جا رہی ہوگی دیکھیں۔ احرام اور اس کی شرائط: سفر کا ایک حصہ ختم کر چکنے کے بعد ایک خاص حد ایسی آتی ہے جس سے مسلمان جو مکہ جانا چاہتا ہو احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احرام کیا ہے؟ ایک فقیرانہ لباس جس میں ایک تہبند، ایک چادر اور جوتی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ تم سو تھے، مگر اب جو تمہیں خدا کے دربار میں جانا ہے تو فقیر بن کر چلو۔ ظاہر میں بھی فقیر بنو، دل کے فقیر بھی بننے کی کوشش کرو۔ رنگین کپڑے اور آرائش کے لباس اتار دو، سادہ اور درویشانہ طرز کا لباس پہنو، موزے نہ پہنو، سر کھلا رکھو، خوشبو نہ لگاؤ، بال نہ بناؤ، ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرو، عورت اور مرد کا تعلق بند کر دو، بلکہ ایسی حرکات و سکنات اور ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرو جو اس تعلق کا شوق یا اس کی یاد دلانے والی ہوں۔ شکار نہ کرو، بلکہ شکاری کو شکار کا نشان دینے یا اس کا پتہ بتانے سے بھی اجتناب کرو۔ ظاہر میں جب یہ رنگ اختیار کرو گے تو باطن پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اندر سے تمہارا دل بھی فقیر بنے گا، کبر و غرور نکلے گا، مسکینی اور امن پسندی پیدا ہوگی، دنیا اور اس کی لذتوں میں پھنسنے سے جو کچھ آلائشیں تمہاری روح کو لگ گئی تھیں اس صاف ہوں گی، اور خدا پرستی کی کیفیت تمہارے اوپر بھی طاری ہوگی اور اندر بھی۔ تلبیہ: احرام باندھنے کے ساتھ جو کلمات حاجی کی زبان سے نکلتے ہیں، جن کو وہ ہر نماز کے بعد اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت ہر روز صبح نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے پکارتا ہے، وہ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہم سب کو مل کر ان تسبیح پڑھنے والوں کے ساتھ شامل کرے، مناسک حج ادا کرنے والوں میں شامل کرے، اس آنے والے سال میں ہمارے مقدر میں حج کا یہ مبارک سفر لکھ دے، آمین۔ یہ دراصل حج کی اس ندائے عام کا جواب ہے جو 4500 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ 45 صدیاں گزر چکی ہیں جب پہل اللہ کی اس منادی نے پکارا تھا کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ زمین کے ہر گوشے سے آؤ، خواہ پیدل آؤ، خواہ سواریوں پر آؤ۔ جواب میں آج تک حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہہ رہا ہے، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری طلبی پہ حاضر ہوں۔ تعریف تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ حاجی کا تعلق سچی اور خالص خدا پرستی کی اس تحریک سے جڑ جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ 4500 برس کا فاصلہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا ادھر اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں اور ادھر سے یہ جواب دے رہا ہے، جواب دیتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔ جو آگے بڑھتا جاتا ہے، شوق کی کیفیت
اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ ہر چڑھاؤ اور اتار پر اس کے کانوں پر اللہ کی منادی کی آواز گونجتی ہے اور یہ اس پر لبیک کہتا ہوا آگے چلتا ہے۔ ہر قافلہ اسے وہیں کا پیام ہی معلوم ہوتا ہے اور ایک عاشق کی طرح اس کا پیام سن کر پکارتا ہے، میں حاضر، میں حاضر۔ ہر نئی صبح اس کے لیے گویا پیغام دوست لاتی ہے اور نور کے تڑکے میں آنکھ کھولتے ہی یہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانے لگتا ہے۔ غرض یہ بار بار کی صدا احرام کے اس فقیرانہ لباس، سفر کی اس حالت اور منزل بمنزل کعبہ کے قریب تر ہوتے جانے کی اس کیفیت کے ساتھ مل کر کچھ ایسا سما باندھ دیتی ہے کہ حاجی عشق الہی میں از خود رفتہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بس ایک یا دو دوست کے سوا آگ میں اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ طواف زیارہ۔ اس شان سے حاجی مکہ پہنچتا ہے، جاتے ہیں سیدھا اس آستانے کا رخ کرتا ہے جس کی طرف بلایا گیا تھا۔ آستانے دوست کو چومتا ہے، پھر اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے دین و مذہب کے اس مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے اور ہر چکر آستانہ بوسی سے شروع اور آستانہ بوسی ہی پر ختم کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں اسلامی کی پڑھتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر کوہ صفا پر چڑھتا ہے اور وہاں سے جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتا ہے۔ عربی نہیں یہاں پہ لکھی ہوئی تو میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، ہماری اطاعت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ بے شک سعی صفا و مروہ، پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، گویا اپنی حالت سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہو ہے کہ یوں ہی اپنے مالک کی خدمت میں اور یوں ہی اس کی خوشنودی کی طلب میں ہمیشہ سعی کرتا رہے گا۔ اس سعی کے دوران میں کبھی اس کی زبان سے نکلتا ہے، ترجمہ: خدایا مجھ سے کام لے اس طریقے پر جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور مجھے موت دے اسی راستے پر جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور زندگی میں مجھے بچا ان فتنوں سے جو راہ راست اور کبھی سے بھٹکانے والے ہیں۔ اور کبھی کہتا ہے کہ یعنی پروردگار معاف کر اور رحم کر، میرے جن قصوروں کو تو جانتا ہے، ان سے درگزر کر، تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے، تیرا کرم بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ وقوف منی عرفات اور مزدلفہ۔ اس کے بعد وہ گویا اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے۔ اب 5-6 روز اس کو کیمپ کی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ ایک دن منا میں پڑاؤ ہے، دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہے، خطبے میں کمانڈر کی ہدایت سنی جا رہی ہے، رات مزدلفہ میں جا کر چھاؤنی ڈالی جاتی ہے، رمی و جمار دن نکلتا ہے، منا کی طرف کوچ ہوتا ہے، وہاں ستون پہ کنکریوں سے چاند ماری کی جاتی ہے، جہاں تک اصحاب فیل کی فوجیں کعبے پر ڈھانے کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ ہر کنکر مارنے کے ساتھ اللہ کا سپاہی کہتا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کو اسکپ کرتے ہیں کیونکہ عراب نہیں لگے ہوئے۔ کنکریوں کی اس چاند ماری کا مطلب یہ ہے کہ خدایا جو تیرے دین کو مٹانے اور تیرا بول نیچے کرنے اٹھے گا، میں اس کے مقابلے میں تیرا بول بالا کرنے کے لیے یوں لڑوں گا۔ پھر اسی جگہ قربانی کی جاتی ہے تاکہ راہ خدا میں خون بہانے کی نیت اور عزم کا اظہار عمل سے ہو جائے۔ پھر وہاں سے کعبے کا رخ کیا جاتا ہے جیسے سپاہی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف سرخ رو واپس آ رہا ہے۔ طواف اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر احرام کھل جاتا ہے۔ جو کچھ احرام کیا گیا تھا وہ اب پھر حلال ہو جاتا ہے۔ اب حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس معمولی زندگی کی طرف پلٹنے کے بعد حاجی مینا میں جا کر پھر کیمپ کرتا ہے۔ دوسرے دن پتھر کے ان 3 ستونوں پر باری باری کنکریوں سے پھر چاندی ماری کرتا ہے، جن کو جمرات کہتے ہیں، اور جو دراصل اس ہاتھی والی فوج کی پسپائی اور تباہی کی یادگار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال عین حج کے موقع پر اللہ کے گھر کو ڈھانے آئی تھی، اور یہ اسے اللہ کے حکم سے آسمانی چڑیوں نے کنکریاں مار مار کر تباہ کر دیا تھا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ کنکریاں مارنے کا یہ فعل اس واقعے کی یادگار میں کیا جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیتے وقت یہ شیطان نے آ کر آپ کو بہکایا تھا اور آپ نے اسے کنکریاں ماری تھیں، یا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں مینڈا آپ کو قربانی کے لیے دیا گیا تو وہ نکل کر بھاگا تھا اور اس کو آپ نے کنکریاں ماری تھیں۔ لیکن کسی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نہیں ہے کہ رمی جمار کی علت یہ ہے۔ تیسرے دن پھر ستونوں پہ سنگ باری کرنے کے بعد حاجی مکہ پلٹتا ہے، 7 دفعہ اپنے دین کے مرکز کا طواف کرتا ہے۔ یہ طواف وداع ہے اور اس کے فارغ ہونے کے معنی حج سے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ حج کی برکات و اثرات، یہ ساری تفصیل جو آپ نے سنی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کے ارادے اور اس کی تیاری سے لے کر اپنے گھر واپس آنے تک 2-3 مہینے کی مدت میں کتنے زبردست اثرات آدمی کے دل و دماغ پہ پڑتے ہیں۔ اس میں وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، آرام و آسائش کی قربانی ہے، بہت سی دینوی تعلقات کی قربانی ہے۔
बहुत सी नफसानी ख्वाहिशों और लज्जतों की कुर्बानी है और ये सब कुछ अल्लाह की खातिर है, कोई जाती गर्ज इसमें शामिल नहीं। फिर इस सफर में परहेजगारी और तकवा के साथ मुसलसल खुदा की याद और खुदा की तरफ शौक व इश्क की जो कैफियत आदमी पे गुजरती है, वो अपना एक मुस्तकिल नक्श दिल पर छोड़ जाती है, जिसका असर बरसों कायम रहता है। फिर हरम की सरजमीन में पहुंच कर कदम कदम पर इंसान इन लोगों के आसार देखता है जिन्होंने अल्लाह की बंदगी और ताअत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, दुनिया भर से लड़े, मुसीबतें उठाई, जिला वतन हुए, जुल्म सहे, मगर बिला आखिर अल्लाह का कलमा बुलंद करके छोड़ा और हर उस बातिल कुव्वत का सर नीचा करके ही दम लिया जो इंसान से अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी कराना चाहती थी। इन आयत बैयनात और इन आसार मुतबर्रिका को देखकर एक खुदा परस्त आदमी अज़्म हिम्मत और जिहाद फी सबीलिल्लाह का जो सबक ले सकता है शायद किसी दूसरे चीज से नहीं ले सकता। फिर तवाफ काबा से इस मरकज दीन से साथ जो वाबस्तगी होती है और मनासिक हज में दौड़ धूप कूच और क़याम से मुजाहिदाना जिंदगी की जो मश्क कराई जाती है, इसे अगर आप नमाज और रोजे और ज़कात के साथ मिलाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि ये सारी चीजें किसी बहुत बड़े काम की ट्रेनिंग है जो इस्लाम मुसलमानों से लेना चाहता है। इसलिए हर उस मुसलमान पर जो काबा तक जाना आने की कुदरत रखता हो जाने आने की कुदरत रखता हो, हज लाजिम कर दिया गया है ताकि जहां तक मुमकिन हो हर जमाने में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान ऐसे मौजूद रहें जो इस पूरी ट्रेनिंग से गुजर चुके हों। हज एक इज्तिमाई इबादत, लेकिन हज के फायदों का पूरा अंदाजा करने से आप कासिर रहेंगे जब तक ये बात आपके पेश नजर ना हो कि एक मुसलमान अकेला अकेला हज नहीं करता है, बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के हज का एक ही जमाना रखा गया है और हजारों लाखों मुसलमान मिलकर एक वक्त में हज अदा करते हैं। पहले जो कुछ मैंने बयान किया है इससे तो आपके सामने सिर्फ इतनी बात आई है कि फर्दन फर्दन एक एक हाजी पर इस इबादत का क्या असर होता है। अब मैं आइंदा खुतबे में आपको ये बताऊंगा कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हज का एक ही वक्त मुकर्रर करके इन फायदों को किस तरह लाखों दर्जा बढ़ा दिया गया है। इस्लाम का कमाल यही है कि बैक करिश्मा दो कार नहीं बल्कि 1000 कार निकाल ले जाता है। नमाज अलहदगी में पढ़ने ही में कुछ फायदे ना थे, मगर इसके साथ जमात की शर्त लगाकर और इमामत का कायदा मुकर्रर कर जुम्मा ईदैन की बड़ी जमातें बनाकर इसके फायदों को बेहद हिसाब बढ़ा दिया गया। रोजा फर्दन फर्दन रखना भी इस्लाह और तरबियत का बहुत बड़ा जरिया था, मगर सब मुसलमानों के लिए रमजान का एक ही महीना मुकर्रर कर इसके फायदे इतने बढ़ा दिए गए कि शुमार में नहीं आ सकते। ज़कात अलग अलग देने में भी बहुत सी खूबियां थी, मगर इसके लिए बैतुल माल का निजाम मुकर्रर करके इसकी मनफियत इतनी ज्यादा कर दी गई कि आप इसका अंदाजा उस वक्त तक कर ही नहीं सकते जब तक इस्लामी हुकूमत कायम ना हो और आप अपनी आंखों से देख ना लें कि तमाम मुसलमानों की ज़कात एक जगह जमा कर एक इंतजाम के साथ मुस्तहकीम में तकसीम करने से कितनी खैर बरकत होती है। यानी मामला हज का भी है, यही मामला हज का भी है। अकेला अकेला आदमी हज करे तब भी इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब हो सकता है, मगर तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ही वक्त में मिलकर हज करने का कायदा मुकर्रर करके तो इसके फायदों की कोई हद बाकी ही नहीं रखी गई। ये मजमून जरा तफसील चाहता है, इसलिए इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा में इसको मुफस्सिल बयान करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाँ जी साथियों, आप अपने पॉइंट्स शेयर करें। मेरे बच्चे मेरा फोन अपने पास में है, उससे सुन रही हूँ तो फोन पे वो ऐप चला रहा। सही सही। ये है कि हाँ एक साथ करने का सच में बहुत फायदे हैं। कोई भी जैसे हम दीनी अच्छा, अमल तो अभी खैर है ही, सबका साथ हो भी जो जाता है। अभी ग्रुप में जो कर रहे हैं ये भी तो किसी का वो है, जैसे हाँ साथ में क्लास नहीं हो में पाता। पढ़ो, अकेले पढ़ो, फायदे तो बहुत हैं अकेले के भी, यही बात लेकिन है कि साथ में पढ़ा ये जाता है। ट्रेनिंग का हिस्सा, एक तरीके की ट्रेनिंग ही है। शायद हज को कभी हमने इस तरीके से नहीं लिया कि वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमें हमेशा उसको एक जैसे हम नमाज फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं, वैसे हमने हज को भी शायद फॉर्मेलिटी समझा कि एक फर्ज अदा कर लिया जाए, लेकिन वो इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये पढ़ के थोड़ा सा दिमाग, कहते हैं ना कि थोड़े से ताले खुले के वाकई अल्लाह पाक की इसके पीछे कितनी बड़ी हिकमत है कि बंदा वाहिद ऐसा सफर है जो अपनी गर्ज के लिए नहीं किया जाता है बल्कि फर्ज की अदायगी के लिए किया जाता जी। हाँ नमाज का, और नमाज तो साथ पढ़ना जब देखा जमात की फजीलत तो सवाब से जोड़ दी गई कि बंदा जो है कम से कम सवाब की नियत से ही जाए। है। वही बात। और उसके बाद में वही हज है का कि भी, घर में हज नहीं में पढ़ लेते हैं, घर में नमाजें कितनी पढ़ ली जाती हैं।
पास में है मस्जिद, लेकिन काहली है, जाने की काहली हज है। में बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिन बेचारों जिन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा, जिन्हें दुआएं भी नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेते हैं, जिन्हें जैसे चौथा कलमा पढ़ा जाता है उसमें, क्या कहते हैं, सही के टाइम पे, हाँ बेटा ले, सही के टाइम पे फोर्थ कलमा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ तो वो जो है नहीं याद होता है, जैसे हमें भी पूरा तरीके से याद नहीं था, देख के पढ़ रहे लोग गाइड कर देते हैं और तो सही बात है। ये ग्रुप का यही फायदा है ना कि अगर एक बीमार है तो साथी मिल जाता है, आपको उठाने वाले वहाँ लोग मिल जाते हैं जो आम हालत में वो नहीं करते। बस हमें हज को मेहनत समझ के ही जाना चाहिए, उसे शायद मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि लग्जरियस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने वहां पे भी आसाइशाती हाँ, चाहिए तो फिर पापा का की भी मेरा यही था, वहां हाँ आप गए तो वहां पर आप पूरे टाइम, मतलब आप पूरा टाइम इबादत में दो जिसके लिए आए हो, खाना पीना और ये सारी चीजें भी सेकेंडरी रखो, फर्स्ट हमारा ये रहे कि हमें इबादत करनी है, क्योंकि ये मौका दोबारा और हज अमूमन तो नहीं एक ही मिलता। बार है। हाँ, एक हाँ, ही बार है, हमारी गवर्नमेंट में तो एक ही बार जा सकते हो। नहीं जाने का आप अपने उससे जा सकते हैं, अल्लाह ताला कभी भी बुलाए, अब बाद में जा सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से तो एक बार है चलो, लेकिन ये दोबारा नहीं नहीं, मिलता है बेसिकली आप वहां ज्यादातर। जा रहे हो तो आप शॉपिंग और इन सब चीजों को परे कर दो। आप वहां, आपका फोकस इबादत हो, बेशक खाने पीने से मना नहीं किया गया, किसी चीज से मना नहीं किया गया, लेकिन आपका फोकस जिस लिए आप जा रहे हो ना वो करो। आपके लिए आरामदेह होटल्स, आरामदेह बिस्तर, आरामदेह चीजों को देखने के बजाय आप अ, उस घर, कह रहे हैं ना, उस दर की जो तलब होती है, उस प्यास को बुझाने के लिए गए हो, तो अपने आराम को थोड़ा सा साइड कर दो, ऐसे। हाँ, आराम को साइड कर दो। अब जैसे मस्जिद नबवी में तो ये मतलब हरम, ये काबा शरीफ जो है ना कभी भी बंद नहीं होता। मतलब जैसे हम्म। ना मस्जिद नबवी एक टाइम होता है 12 बजे के बाद उसको क्लोज कर देते हैं और क्लीनिंग होती है, उसकी तो साथ साथ क्लीनिंग होती रहती है, वो कभी बंद नहीं होता, आप वहीं पड़े रहो, पूरा रात पड़े रहो, पूरा दिन पड़े, पूरे टाइम तवाफ चलता है। यही तो बात है। ताज्जुद भी वहीं पढ़ो, वहीं बैठो, अपना कुरान पढ़ो, वहीं लो हाजी लेट गए और अपना लेट क्या गए, टेक लगा ली या लेट भी गए, तो कुछ ऐसा नहीं है, इतना बड़ा स्पेस है माशाल्लाह, बहुत बड़ा स्पेस। तो आप अपना जो है, जब हम उठे तवाफ कर लिया, फिर अपना थोड़ी देर टेक लगा के बैठ गए, लेट गए, पढ़ लिया, सुकून से बैठ जाओ, काबे को देखना भी सवाब है। अल्लाह ताला हम सबको बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए और जल्द से जल्द उस दर की हमें ज़ियारत नसीब फरमाए, क्योंकि ना हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। कम से कम बंदा ज़िंदगी में एक मर्तबा तो वो दर्द देखा है, कम से कम। जिंदगी का भरोसा नहीं है आप किसी गए हो चीज का। अनु? अपिया तो नहीं, गई हैं। नहीं, नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने बुलाया तो किसी भी वक़्त चला जाएगा बंदा। अपिया का तो उसका भी बन रहा था अभी, हज का भी बन रहा था। इंशाअल्लाह अल्लाह हाँ जी, आसानी करे। हाँ बस जितनी जल्दी हो जाए, सोच रही हूँ कि हो जाए आज, तो चलें इसको बेहतर है। हाँ, हम इसको एंड कर देते हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।